Hello everyone and welcome to Sambhav Law. In today's session, we have with us Asmi, who has cleared the IIT Kharagpur 2026 Elementary exam, and today she is here to share with us her story as to how she cleared this exam. And accordingly, I hope that this session will be very fruitful for the students who are watching this. So accordingly, Asmi, firstly, I would welcome you to the channel, and I would love that you would please introduce yourself to the audience, please. Hi, thank you for the opportunity. My name is Asmi. I have completed my BA from Bennett University, and I graduated last year, and I've been preparing for LLM competitive exams ever since. So Asmi, like my first question would be like, what are the exams that have you been preparing for, and how did things go on that front, basically? I've appeared for all the exams, CLAT, ALET, and CUET, and Kharagpur as well. And preparation-wise, I would say सबका एक ही approach रहती है. Although paper structures and the level of deepness when it comes to conceptual understanding differs, but basic conceptual आपका सारे exam में एक ही लगता है. Yeah, That's yeah, what I've experienced. I see. So coming to the IIT Kharagpur part, अब देखिए यहाँ पे पहली बात तो ये आती है कि the PYQs for the IIT Kharagpur exams are not available. So पहली आप हमें ये बता सकते हैं कि like how was the exam itself that you gave, and what was the difficulty, and what are the questions that were asked? थोड़ा सा you can give a glimpse upon that. If I had to compare it, I think ALET के sense में structure wise it was pretty similar. Although I would say ALET is a little more difficult than IIT. And ALET में थोड़ा deeper questions पूछे जाते हैं. And from my I don't know much about the last year because paper नहीं release होते हैं. But this time I think it was like 100% legal acumen based. There were, as far as I recall, no case law questions, no section recalling or anything like that. सब कुछ बहुत ही legal common sense type के questions थे. And अगर basic understanding है, college में ध्यान दिया है, तो I think it's a good exam you should appear for. It's not Yes, yes. very like creative in that way कि बहुत घुमा के questions पूछते हैं. That's what I've heard. And apart from that, heavy emphasis on IPR, of course. And just usually we focus on copyright, patent, trademark, but they also ask questions from semiconductors and designs and plant variety, GIA. Although it sounds intimidating, but I think बहुत ही surface level था. And since penalty नहीं होती है, तो you are free to guess. And I think options भी ठीक ठाक ही देते हैं, तो you can easily attempt it. It's not very hard. Hard नहीं होता है. And And like apart from that, I would also say कि jurisprudence and international law, I would say थोड़ा medium level का आया था इस बार. जितना मैंने prepare किया, जो sources मैंने use किए हैं, वहाँ पे उस depth के questions नहीं थे जो पूछे गए थे. जैसे जो भी statements थे, they are not very popular जो jurisprudence में पूछे गए थे कि किसने कहा है. तो that was probably a fluke कि कैसे हुआ है. But apart from that, basic ही रहता है mostly, I would बेसिक say. रहता है. आई सी. अच्छा, इसके अलावा लाइक मेन सब्जेक्ट से कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, क्रिमिनल लॉज हो गए, और आपके लेबर इन्वायरमेंट और कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह, इसमें से किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे? कंट्रैक्ट से भी वही एनालॉजी बेस्ड थे कि इफ ए इज दिस देन बी इज दैट. तो दैट वाज प्रीटी इजी टू डू. कॉन्स्टिट्यूशन में इट वाज देयर वर नो केस बेस्ड क्वेश्चंस. इट वाज प्योरली जैसे अ, जैसे रिट्स का है या जो ग्रुपिंग्स हम लोग यूजुअली करते हैं व्हेन वी स्टडी, उसी ग्रुपिंग से क्वेश्चन आया था रादर देन कि मतलब दे आल्सो गिव यू आर्टिकल का नंबर एंड एवरीथिंग, सो यू डोंट हैव टू मेमोराइज एनीथिंग. एंड व्हेन इट कम्स टू क्रिमिनल लॉज, सारे न्यू ही पूछे थे ऑफ कोर्स. एंड सेक्शन कुछ भी नहीं था. जैसे जनरल एक्सेप्शंस और ये सब जो टॉपिक्स होते हैं यूजुअली, तो उनकी आपकी कैसे अंडरस्टैंडिंग है. जैसे दे विल गिव यू सम एनोलॉजी एंड देन यू हैव टू थ्रू योर acumen गेस की कैसा कौन सा जनरल एक्सेप्शन लगेगा दैट यू फाइंड जस्टिफाइड इन दैट. एंड आई थिंक इट्स अ वेरी लाइक थॉट प्रोवोकिंग एग्जाम इन दैट वे, जो बाकी मैंने नहीं देखा था एग्जाम्स में. जी. और इसके अलावा लाइक जैसे अगर बात करें आपके प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जैसे आपने प्रिपरेशन आपने कब शुरू करी थी, और बाकी व्हाट सोर्सेज दैट यू लाइक रेफर आपने कौन से किए थे इन जनरल? मैं लास्ट ईयर नवंबर में आई थिंक आई ग्रेजुएटेड, तब भी मैंने स्टार्ट कर दिया था थोड़ा थोड़ा. एंड व्हाट आई डिड
personally was I'm not a big reader. I don't like to read, which is very ironical for this field. And तो मैंने उतना पढ़ाई रीडिंग वाइज नहीं करी. What मेरा जो basically strategy थी was to attempt as many MCQs as I could. तो मैंने सिंगल्स की बुक ली, वो मैंने लगा लिया. देन आई टुक योर कोर्स एज वेल. उसमें टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन बैंक था दैट हेल्प्ड अ लॉट. अपार्ट फ्रॉम दैट आई गेव अ लॉट ऑफ मॉक्स. इवन मतलब नए भी मॉक्स नहीं तो री अटेम्प्टेड अ लॉट ऑफ मॉक्स. तो एक सेकंड नेचर टाइप का हो जाता है व्हेन यू रीड दैट सेम टॉपिक. तो अपने आप आपको आंसर पता चल जाता है. सो दैट वाज अ बिग स्ट्रेटजी फॉर मी पर्सनली. इट वाज लाइक कि एक ब्रूट फोर्स अप्रोच आप कहते हो ना, कि इतना लगा लो कि वो सेकंड नेचर एकदम आपके बन जाए. समटाइम्स जो लोग प्रिपेयर नहीं करते यू डोंट नो कि कैसे हमें अप्रोच करने हैं सब्जेक्ट्स. तो मुझे भी उतना श्योर नहीं था. तो बेसिक जो इंटरनेशनल लॉ कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो मोटा मोटा पढ़ के आई माई अप्रोच वाज कि क्वेश्चंस लगाओ. तो क्वेश्चंस जिस तरह के बनते हैं, क्या डेप्थ होती है, समटाइम्स दे गेट रिपीटेड. एक्चुअली अ लॉट ऑफ टाइम्स दे गेट रिपीटेड. तो चाहे फ्री सोर्सेज से एमसीक्यूज लगाओ, चाहे बुक से लगाओ, चाहे कोई कोर्स लेके लगाओ. आई थिंक बेस्ट स्ट्रैटेजी इज give a lot of MCQs though because they don't get very creative there personally I think. वो बात तो सही है, दैट इज ट्रू. बिकॉज द पॉइंट बीइंग कि आप अगर जैसे मान लो एमसीक्यूज बनाओगे, मॉक्स बनाओगे, कुछ भी करोगे, तो देयर आर लिमिटेड सोर्सेज दैट यू कैन बेसिकली यूज टू क्रिएट दोस. और वही रिगर्जिटेट Exactly. हो के वो अपना बंदा चला जाता है, बिकॉज कोर फोकस वही होता है, बिकॉज आपने जो पढ़ा है वहीं से वो क्वेश्चन पूछा है. सीधी सी बात है. अच्छा, कमिंग टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन. जैसे आप मान लीजिए हम लोग बात करते हैं कि एक कोई भी स्टूडेंट जैसे तैयारी जब शुरू करता है, जैसे आपने मेंशन करा कि आपने क्लैट और बाकी सारे एग्जाम्स को भी वो किया था, व्हाई इज इट नेसेसरी अभी आज के टाइम पे कि हमें लाइक एक फोकस रखना चाहिए कि वी नीड टू गिव मल्टीपल एग्जाम्स अकॉर्डिंग टू यू? A big thing with me was that I never thought I'll get here and there are exams तो कुछ लोग experience के लिए भी देते हैं. And that was my approach. मेरा कोई बहुत ही strict aim नहीं था to get into IIT. But since there was an exam and pattern थोड़ा सा different था, so I just wanted to experience it. So उस experience से भी when you build over it, तो कई बार और exams की approach आपकी अच्छी हो जाती है. So मेरा aim तो CUET था and that has helped me a lot in this exam. So you never know कि कब cross help मिल जाए आपको. So you should appear for each exams even though you don't do well. That doesn't mean anything if you don't do well. कोई signifier नहीं होता है वो सही intelligence का बात है. personally. पर्सनली तो तो you should just experience everything. उससे आपका काफी horizons broaden होते हैं. वो बात भी सही है, वो बात सही है. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल्सो ये भी होता है कि जैसे आप एग्जाम देते हो, एक्सपीरियंस इज वन थिंग, सेकंड इज की ऑब्वियसली भाई कॉलेज तो चाहिए. ठीक है, एग्जाम आप इसलिए देते हो. That अब part, जैसे yeah. क्लैट में भी वही होता है कि इफ यू गिव द एग्जाम, इसकी कोई वारंटी या गारंटी तो है नहीं कि एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा. बिकॉज इन माय पर्सनल एक्सपीरियंस आई हैव सीन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ माइन, जैसे कई लोग थे जिन्होंने मॉक पेपर्स में देवर लाइक, जैसे इस साल अभी हम लोग बात करें तो ऑल इंडिया रैंक 6, ऑल इंडिया रैंक, मतलब जितने टॉपर्स थे उनके साथ बहुत अच्छे से वो देवर कंपीटिंग. बट एग्जाम जब हुआ और एज अ शॉकर टू माई सेल्फ इन माई पर्सनल कैपेसिटी, वो नहीं एग्जाम अच्छा गया. तो अगर आप ये उम्मीद करते हो कि वो टॉप 100 में जाएगा, दे आर गोइंग इन 800, कभी 1200, मतलब उस तरीके से, तो वो चीज आपको देखनी पड़ती है कि ऑल्दो यू आर डूइंग वेरी वेरी वेल, इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि वही रिजल्ट आएगा जो आप एक्सपेक्ट करके चल रहे हो, इवन मॉक्स में भी अगर आप ला रहे हो. वो बात है. तो इसीलिए इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव मल्टीपल अटेम्प्ट्स, कि अगर आपको एक ही साल में एलएलएम कंप्लीट करना है, तो अगर आपने क्लैट दिया, फिर आपने सीवीटी दिया, फिर आपने और ये रैंडम एग्जाम्स दिए, तो कहीं ना कहीं तो आपका एटलीस्ट एक नहीं जो वो बैठेगा. तो इस पे आप बेसिकली व्हाट वुड लाइक टू से ऑन दैट पार्ट? Anyway, I believe that exams are a gamble. कोई आपका कोई भी signifying वो नहीं होता है. A lot of people face a lot of different factors when they study. सिर्फ कितना आता है कितना नहीं आता है वो factor नहीं होता है. A lot of people get very anxious when they give exams. या कुछ लोगों की reading speed नहीं अच्छी होती है जबकि उनका intelligence 10 on 10 होता है. तो इतना hard नहीं होना चाहिए खुद के ऊपर and you should give it just like a normal exams. ऐसे ही वर्क करता है एंड यू वर्क शुड करता है. अंडरस्टैंड जस्ट लक. देयर इज अ लॉट ऑफ लक व्हेन हाँ, इट कम्स टू बहुत कॉम्पिटिटिव बड़ी एग्जाम्स. बहुत बड़ी बात. अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस लाइक अस्मी, इफ आई टॉक अबाउट कि जैसे मान लीजिए अब नेक्स्ट ईयर जिन लोगों को आईआईटी खड़गपुर की प्रिपरेशन करनी है, उनके लिए आपके पास एक क्या मैसेज होगा कि व्हाट आर द 3 या 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो कि आपको ध्यान रखना चाहिए व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग?
While you're preparing for any exam, let alone IIT, I think you should focus more on कि कितना retain कर पा रहे हो rather than completing your syllabus या 16-16 घंटे पढ़ना. A lot of people go into that approach, फिर बहुत ज़्यादा उनके अंदर fear एक सा आ जाता है, cause एक वो loop होता है कि मैंने enough नहीं किया या बहुत competitive है, लोग मुझसे ज़्यादा कर रहे होंगे. I think comparison से anxiety बहुत enhance होती है, and वो factor completely दिमाग से निकाल देना चाहिए. बिकॉज आपको चाहिए एक ही सीट और वो आपको मिलेगी इफ यू ट्राई, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ लक एज वेल. सो उतना नहीं सोचना चाहिए कि ज्यादा रेस है या बहुत हाई कंपटीशन है. यू शुड जस्ट फोकस ऑन कंसिस्टेंसी. यू शुड, मेरा जो अप्रोच था कि यू शुड नो मोर देन यू डिड द डे बिफोर. तो अगर मेरा समटाइम्स मन भी नहीं करता था मॉक देने का, सो व्हाट आई वुड डू कि मैं एक टॉपिक वाइज क्विज दे दी या कुछ नया टॉपिक पे एक छोटा वीडियो देख लिया. जस्ट डू समथिंग ईच डे, भले ही छोटा कर रहे हो, बिकॉज आई थिंक थोड़ा थोड़ा बिल्ड करते करते ही वो डे जब आपका फाइनल आता है, Yeah, इट एड it adds इंस्टेड big ऑफ. time. या 100%. वो बात तो. अच्छा, कमिंग टू माय सम ऑफ माय फाइनल क्वेश्चंस. पहली बात तो ये है, जैसे इसमें देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो कि तैयारी करते हैं, और आपने वैसे अपने प्रीवियस आंसर्स में उस चीज को बहुत अच्छे से बताया कि आपको निराश नहीं होना है और आपको कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है. तो उस पॉइंट पे थोड़ा और आप और बता सकते हैं कि लाइक फॉर एनी स्टूडेंट जो कि अभी जिसका एग्जाम नहीं निकला, थोड़ा परेशान है, उसके लिए क्या मैसेज होगा आपके पास? Uh, it does, मतलब I don't want to sound disrespectful, but it doesn't mean anything as much as जितना लोग सोचते हैं कि like, you know, I know it matters to a lot of people, but अगर नहीं निकला, there is an abundance of opportunities everywhere. तो आप दूसरी चीज़ों के लिए ट्राई करो, और यू कैन ऑलवेज ट्राई नेक्स्ट ईयर. कोई लिमिट तो होती नहीं है ट्राई के लिए. वॉट यू शुड डू, विच आई थिंक इज अ नॉन नेगोशिएबल, इज जस्ट बी ऑनेस्ट कि कितना आता है कितना नहीं आता है. सो फ्रॉम दैट यू कैन बिल्ड कि अगर कम भी आता है तो फेस इट. अ लॉट ऑफ पीपल गेट वेरी एंशियस जब वो नंबर्स देखते हैं कि जैसे 10 आया 100 में, तो दे गेट वेरी स्कैर्ड. वो मेरा जो मॉक देने में अप्रोच था वो था कि मैं सारे आंसर्स अटेम्प्ट कर रही थी गेस वर्क भी करके, इंस्टेड ऑफ स्ट्रेटेजिकली पिक जैसे नेगेटिव वाले भी होते हैं. आई जस्ट डू इट बिकॉज आपको एंड ऑफ द डे इट्स अ मॉक. आप जब रिव्यू करोगे उसको आप एक स्टडी की तरह कर सकते हो, रादर देन कि मैंने कितना अच्छा परफॉर्म किया एंड इट विल बी इक्विवेलेंट ऑफ माय फाइनल डे. इट्स नॉट. मेरे भी मार्क्स बहुत खराब गए, बट अपेरेंटली इट डजेंट मैटर. सो जितना आप कर पाते हो, यू नीड टू बिल्ड ऑन योर सेल्फ, बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, एंड मार्क्स देने के बाद रियली यू नो लुक कि कहाँ लैग कर रहे हो, एंड देन यू कैन That वर्क part. ऑन दोज लिटिल एस्पेक्ट्स इंस्टेड ऑफ पूरा अप्रोच, सिलेबस वाइज अप्रोच. वो बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है. अच्छा, इसके अपार्ट में लाइक इफ आई कम टू माय लास्ट पार्ट्स, लाइक आपने जैसे मेंशन भी किया कि आपने संभव लोगों के साथ तैयारी करी, मेरे साथ कनेक्टेड भी रहे, तो आपको मतलब आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? व्हाट वुड यू से अबाउट दैट? थोड़ा सा अगर आप कहो. आई थिंक बहुत बड़ा फैक्टर था योर कोर्स, जिसमें सारे यूनिवर्सिटीज एग्जाम्स का के तो. मॉक्स अवेलेबल थे. तो मेरा तो सारा अप्रोच था, तो इट रियली हेल्प मी. मैंने आईएलआई का भी दिया, आईआईटी का भी दिया, सीवीटी का भी दिया, क्लैट का भी दिया. तो मैं इट रियली हेल्प मी बिकॉज मुझे बहुत ज्यादा वैरायटी मिल गई थी क्वेश्चंस की. एंड घूम फिर के फिर वो एक आपके दिमाग में बनने लगता है कि ऐसे ही क्वेश्चन आएगा तो इसका यही आंसर होगा. सो द मोर मॉक्स यू गिव, द मोर चांसेस देयर आर कि आपको उस समय क्वेश्चन फेमिलियर लगेगा या एंजाइटी प्रवोक नहीं होगी एट द टाइम. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, टाइम मैनेजमेंट भी आपका नेचुरली हो जाता है, सेकेंड हैंडली हो जाता है. यू डोंट नीड टू कंप्लीटली वर्क ऑन इट एंड टाइम योर सेल्फ. मॉक देते रहो, अपने आप सेकंड नेचर में आपको समझ आ जाएगा कि कैसा टाइम कट रहा है कैसा नहीं कट रहा है. वन थिंग दैट रियली हेल्प मी विद योर कोर्स वाज, एक तो क्वेश्चन बैंक, दैट टॉपिक वाइज वाला. तो मुझे एक ही जगह पे सारे क्विजेज और सारा एमसीक्यूज और मॉक्स मिल गया था. एंड वन बिग थिंग वाज री अटेम्प्टिंग योर मॉक्स. तो व्हाट आई वुड डू, आई वुड अटेम्प्ट वन मॉक ईच डे and then review it. Next day new mock, but also reattempt the previous day mock. तो मैंने एक mock एटलीस्ट 3-3 4-4 या 6-6 बार भी दिया है. तो मेरा दिमाग में वो क्वेश्चंस लास्ट कर जाते हैं, you know. So I think that was a very good feature that you provide in your courses. So that helped me really a lot. तो अस्मी, माय लास्ट क्वेश्चन टू यू वुड बी कि अगर हम लोग बात करें कि जैसे अभी आईआईटी खड़गपुर एग्जाम हो गया, इसके अभी आईएलआई एग्जाम्स भी है, बाकी सब चीजें भी है, तो आप अभी क्या स्टूडेंट्स को, मतलब एक फाइनल मैसेज अगर आपको देना हो अपने फाइनल उसमें, तो आप क्या बोलना चाहोगे? Again, to reiterate, be honest, anxiety हटा दो,
होना होगा, हो जाएगा, एंड यू जस्ट नीड टू कंसिस्टेंटली ट्राई एंड अपीयर, डोंट अपीयर। बैक ऑफ, डोंट गेट स्कैर्ड। सब कुछ एक नॉर्मल पेपर ही है, डोंट फील लाइक इट्स लाइक अ वेरी ह्यूज माउंटेन यू नीड टू क्लाइम, ऑल्दो इट मस्ट फील लाइक इट, but you can relax and rest is a very important thing. I think a lot of people overlook that. आराम से दो, आराम करो, sleep well, you don't need to pull overnighters, उससे दिमाग ज्यादा pollute होता है rather than not knowing, you know. ये वो बात सही है। And वो बात सही है। नहीं, इवन इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आप राइट टाइम पे तैयारी करना शुरू करो, बिकॉज ऑल नाइटर तब हाँ, होती है जब तैयारी टाइम पे शुरू नहीं करोगे। exactly. और चलिए, आई होप कि इस सेशन में जो भी हम लोग ने बातें यहाँ पे करी, आई होप स्टूडेंट्स को काफी हद तक हेल्पफुल रहेंगे। आईआईटी खड़गपुर के नेक्स्ट ईयर दे वुड रियली हेल्प, भी लाइक उनके लिए बहुत वो रहेगा। थैंक यू सो मच एसपी फॉर गिविंग अस योर टाइम, है ना, एंड थैंक यू सो मच।